Sambhashni Gore from Chandala Homeopathic Medical College, and today we are going to discuss lecture 24 of our JT Kent lectures on homeopathic philosophy. Here it is, the examination of the patient continued. That means we are going to continue the case taking part that we have discussed in the last lecture. Here's the overview of the lecture. This lecture focuses on how the examination should continue after the initial steps, with an emphasis on determining the quality of symptoms, correctly classifying them, and understanding their relationship to both pathology and materia medica. Hahnemann discusses the importance of distinguishing between common symptoms, peculiar symptoms, and how the symptomatology correlates with the disease and remedy selection. Furthermore, he stresses the importance of the patient history, circumstances of life, and avoiding interference from external factors like drug usage. Below is a detailed analysis of each of the important points in the lecture, including examples. So here's the key concept. First, symptom classification, common versus peculiar symptom. In aphorism 85, some symptoms have reference to pathology and diagnosis, while others have reference only to materia medica, and symptom must be constantly weighted in the mind in order to establish their grade, whether common or peculiar. तो मतलब हमारे इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सिम्टम हमें लेने हैं, किस पे ज़्यादा जोर डालना है हमारे मटेरिया मेडिका के अकॉर्डिंग, पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, या जो भी पिकुलर सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स हैं, उन्हें हम कैसे बाइफर्गेट कर सकते हैं फर्दर हमारे केस टेकिंग के लिए. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. Symptoms must be classified into common, non-specific, and peculiar, specific to the individual case. Common symptoms are symptoms shared by many individuals or disease, such as headache, fever, or fatigue. These do not specifically point to the particular remedy, but are useful in understanding the general condition. Peculiar symptoms are those that are unique to the patient or an individual disease, such as a specific type of pain, emotion, or reaction that strongly indicates a remedy. Here is an example. A headache that feels like throbbing in the temples may be common in many diseases, but a headache that feels like a band around the head, or that one gets worse after eating, could be peculiar to a specific remedy, nux vomica. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मान लो एक कॉमन सिम्टम है, ठीक है, कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, फीवर है, फीवर के साथ हेडेक होता है, ठीक है, हेडेक होगा, फैटिक होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन सिम्टम है. बट इसमें जो इसमें पेक्युलर क्या हो जाएगा, हर एक इंडिविजुअल. देखो हर एक इंडिविजुअल में मैंने आपको कई बार अपने सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि हर इंडिविजुअल जो है अपनी डिसीज़ एक्सप्रेशन अलग तरीके से करता है, क्योंकि हर किसी की वाइटल फोर्स अलग है, हर किसी की ससेप्टिबिलिटी अलग है, ठीक है, हर किसी के फैक्टर्स अलग है, हर किसी के बॉडी में अलग मियाज में प्रेजेंट है. तो इस तरह से क्या हर व्यक्ति अपनी डिजीज़ को अलग तरीके से, उसकी जो वाइटल फोर्स है, जो भी रीअरेंजमेंट है, वो अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस करती है. तो वही है ये कि पेक्युलर सिम्टम्स, मतलब उस इंडिविजुअल के जो सिम्टम आ रहे हैं, फैटिग है या हेडेक है, मान लो हेडेक में भी उसको कैसा पेन हो रहा है, थ्रॉबिंग पेन हो रहा है. अब उसमें भी क्या पेक्युलरिटी आ गई कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बैंड लाइक अराउंड उसके हेड कोई बांध दिया, जैसे कोई इसके हेड में या उसके सर पे बहुत टाइट सा कोई बैंडेज या बैंड बांध दिया, ऐसा फील हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, पेक्युलर सिम्टम्स हो गई. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंप्लीट एंड एक्यूरेट एग्जामिनेशन, एफोरिज्म 86. If we all are found to be common symptoms, thus materia medica left out. तो देखो अगर क्या होता है, मान लो कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन सिम्टम लेते हैं तो हमारी मटेरिया मेडिका पीछे छूट जाती है. Here is the explanation. If the symptoms are all common, they do not correspond to a specific remedy from the materia medica. The physician may focus on the pathological diagnosis and treat accordingly, but homeopathy depends on the peculiar symptoms for the correct remedy selection. Example, if a patient presents with a symptom of common cold, runny nose, mild fever, general aches, they may not have peculiar symptoms that would differentiate between remedies like Aconite or Nux vomica, leading to a focus on conventional treatment. और देखो क्या होता है, अगर हमने पेकुलर सिम्टम्स नहीं लिए हैं, कॉमन कोल्ड हमको दिख रहा है, उस कंडीशन पे क्या होगा, जब तक हम को पेकुलर सिम्टम्स नहीं मिलते, हम सिर्फ पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ही कर सकते हैं, और उस तरह से हम सिर्फ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, मतलब जो एलोपैथ जैसे ट्रीटमेंट देते हैं, करते हैं, उसी मेथड में ही सिर्फ हम ट्रीट कर पाएंगे. The image of the case, aphorism 87. But if the image is round and full and complete, there are symptoms with regards to pathology, diagnosis, prognosis, and materia medica. Here's the explanation. A complete case will involve a full set of symptoms that can be classified and interpreted in relation to pathology, diagnosis, prognosis, and the materia medica. The homeopath should aim to identify peculiar symptoms that match a known remedy alongside general diagnostic information. Here is an example. A patient with fever accompanied by chillness
headache and thirst for cold drinks might present a clear case of aconite if the symptoms match a complete image of the materia medica। तो देखो मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी हमारी डिजीज पिक्चर ड्रग पिक्चर से मैच करती तब हम पहले ही बार में सही तरीके से क्या करते हैं, सही रेमेडी सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना। और हमें पता है कि टोटलिटी कैसे लेनी है, हम उसे जनरल, फिजिकल, मेंटल सारी एक एक एकदम इम्पॉर्टेंट स्मॉल टू स्मॉल पॉइंट को भी हम नोट करेंगे अगर कोई पिकुलर सिम्टम्स हैं तो। और उसी के बाद हम हमारी मटेरिया मेडिका के अकॉर्डिंग और सही रेमेडी सेलेक्ट करके उस पेशेंट को दे पाएंगे, जैसे यहाँ पे एकोनाइट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द जनरल वर्सेज स्पेसिफिक सिम्टम्स। Aphorism 88. When the physician comes to look over the record after an examination to get the image to classify and arrange it, he will find what is peculiar in those symptoms that are most general and those that are but common. Explanation. The physician must review the case systematically to identify and classify the symptoms as either common, general or peculiar. These distinctions are essential in choosing the correct remedy. Example: peculiar symptoms. A burning pain in stomach that gets worse after eating. Common: a general dull headache with no clear location or specific triggers. तो देखो क्या होता है, एक पेशेंट है, अब उसमें पेकुलर सिम्टम कैसे पता चल रहा है हमें, उसके पेट में कैसा जलन के साथ दर्द हो रहा है, ठीक है, जैसे जल रहा है और बहुत दर्द दे रहा है, ऐसा वाला पेन है उसको, है ना। और उसकी जो कंडीशन है वो ये प्रॉब्लम उसकी कब बढ़ जाती है, जब वो खाना खाता है उसके बाद। तो ये क्या हो गई, उसकी पिकुलैरिटी हो गई, ये उसकी यूनिक फीचर है, ठीक है, उसका यूनिक कैरेक्टर हो गया, तो ये पिकुलर सिम्टम्स हो गए। अब कॉमन क्या हुआ, एक जनरल हेडेक है किसी को, ठीक है, डल हेडेक है, मतलब ऐसे सर दर्द दे रहा है, एकदम डलनेस है, ठीक है, बहुत ही हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डल हेडेक, मतलब बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रहे हैं उसके, मतलब जैसे कि एग्रेवेशन नहीं पता हमें, उसका एम्बुलेशन नहीं पता, पर्टिकुलर लोकेशन नहीं पता कि फ्रंटल में हो रहा है, टेम्पोरल में हो रहा है, ऑक्सीपिटल में हो रहा है, मतलब हमें उसका रीजन तक नहीं पता कि किस रीजन में उसको पेन हो रहा है, और स्पेसिफिक ट्रिगर्स मतलब किस चीज़ से उसकी तकलीफें बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमें नहीं पता होगी हम कोई भी करेक्ट रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। Homeopathy in the presence of peculiar symptom. Aphorism 89. Every case has a common symptom but peculiar symptoms may be absent and you must not expect to cure when peculiar symptoms are absent. तो देखो जब तक हमें peculiar symptoms नहीं पता होंगे हम ये expect भी नहीं कर सकते कि हम उस patient को cure कर सकते हैं। Here's the explanation. Not every case will have a peculiar symptom. However, without the specific symptom, finding the right remedy may be very difficult. The absence of peculiar symptoms means the homeopathic treatment may not be applicable or effective. Example: if a patient only has common symptoms such as fever, chills, fatigue, the physician may struggle to find a specific remedy. However, if the patient also exhibits peculiar symptoms such as craving for sour food, देन अ रेमेडी लाइक चाइना कुड बी इंडिकेटेड। तो देखो क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पेशेंट की हमें पिकुलैरिटीज़ नहीं मिलती, तो उस कंडीशन पे इफेक्टिवली हमारी होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस पेशेंट को क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, किसी को फीवर है, ठंड लग रही है, बुखार है, ठंड लग रही है, फटीग है, ये सब तो कॉमन चीज़ें होंगी, ये तो कॉमन सिम्टम हो गए। अब क्या होगा, अपन को उसके पिकुलर सिम्टम नहीं पता, तो क्या हम किसी रेमेडी पर जा पाएंगे, नहीं। अब पिकुलर सिम्टम इसमें क्या हो सकता है कि बुखार में उसे खट्टा खाने का मन कर रहा है, ठंडा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, या उसको चटपटा खाने का मन कर रहा है, ये सब क्या होगा, इसकी पिकुलैरिटीज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे पिकुलर सिम्टम के थ्रू ही हम सही रेमेडी सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल था चाइना का, तो देखो ये पिकुलैरिटी पे क्या है, चाइना इंडिकेट करती है, ठीक है। Quick diagnosis through observation. Aphorism 90. The physician must sit in the judgment upon the symptoms and determine whether they are peculiar or common. Explanation. The physician must use their experience to judge whether the symptoms are peculiar or common. This requires careful observation and critical thinking during the examination. Example: peculiar: a sharp stabbing pain in the chest that radiates to the left arm, suggesting spigillia. Common: a general chest pain without any specific characteristics but might require more general treatment approach. तो देखो कहाँ पे हमें peculiarity का यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट करना है और कहाँ पे हमें जो है कि मतलब क्विक डायग्नोसिस करना है, फट से हमें डायग्नोस करके उस पेशेंट को जनरलिटीज़ के ही अकॉर्डिंग हमें दवा देनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। Evaluating the patient's mental state. Aphorism 91. If the patient discourse incoherent, the question arises: is he intoxicated or delirious, or is there breaking down of the brain
एंड इंसैनिटी। तो देखो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें उसकी मेंटल स्टेट को भी देखना है कि मेंटली इसकी स्टेट कितनी अल्टर्ड हुई है, कैसे अल्टर्ड हुई है, या उसमें क्या हमको चीज़ें मिल रही, किस तरफ उसके मेंटल स्टेट जा रही है, इंसैनिटी पे जा रही है, डिलीरियम पे जा रही है, इंटॉक्सिकेटेड है, या किस तरह का उसका ब्रेन जो है वो फंक्शन कर रहा है। इससे हमें पता चलता है, ठीक है, कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसकी जो डिजीज़ कंडीशन है वो कितनी वर्स है या कितनी बेटर हो रही है, ठीक है। Explanation: when the patient's mental state is altered, the physician must differentiate between the intoxication, delirium, and serious mental condition. The mental symptoms are crucial in selecting the remedy. A patient is in delirium with irrational speech and glassy eye might indicate opium poisoning or delirium due to typhoid fever. These are important diagnostic clues. तो देखो हमको बहुत ही बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें हमको टाइफाइड के साथ डिलीरियम मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी बैक्टीरिया टिंक्टोरा हो गई, ब्रोनिया हो गई, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें टाइफाइड के फीवर की दवा है। बट उसमें भी हम क्या सेलेक्ट करेंगे, जो हमारे मेंटल्स हैं उसको सारे को रिकॉर्ड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है कि ग्लासी आइज, ठीक है, ऐसे ग्लास जैसे जो है अपीयरेंस दिखता है आइस का, और इरेशनल स्पीच मतलब वो अजीब सा बड़बड़ा रहा होता है, ठीक से उसकी स्पीच क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें केस में मिलती है ओपियम में, ओपियम पॉइजनिंग में, इसलिए हमें वो रेमेडी देनी होती है, और ये हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक क्लू है, ठीक है। Physical symptoms and their diagnostic value. Aphorism 92: the flash of the eye is important. It will tell things that cannot be told by the nurse. Explanation: the physician must pay close attention to non-verbal cues such as flash of the eyes or the expression of the patient's face. These can provide insights into patient's internal state that cannot be communicated verbally. तो देखो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए, a glassy-eyed patient may indicate severe shock, intoxication, or typhoid fever. A bright, alert gaze might indicate a less severe condition, guiding the physician towards a different diagnosis. तो देखो क्या होता है कि जब हम बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, तो देखो हमारे में सब्जेक्टिव सिम्टम्स तो वो होते हैं जो हमको पेशेंट बता रहा होता है, बट एक फिजिशियन का आर्ट है ये कि वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को भी देखे, समझे, पेशेंट के एक्सप्रेशन को देखे, पेशेंट की आंखों में टॉर्च डाल के देखे, पेशेंट को एकदम अच्छे से एग्जामिन करे, उसकी टंग देखे, उसकी स्किन देखे, उसके नेल्स देखे, हर एक छोटी से छोटी डिटेल चीज़ें वो रिकॉर्ड करे, और उसके बाद ही वो कंप्लीट केस टेकिंग के बाद पर्टिकुलर रेमेडी सेलेक्ट करें। तो इस तरह से ही हम क्या कर पाएंगे, उसको सही रेमेडी प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। Sign of serious condition: identifying acute problems. Aphorism 93: the physician must know immediately upon entering the room what the state of the patient resembles: apoplexy, coma, opium poisoning, etc. Explanation: the physician should quickly recognize the severity of the patient conditions and its likely causes. This requires familiarity with both acute diseases presentation and diagnostic signs. Example: apoplexy, sudden loss of consciousness, paralysis or facial drooping. ओपियम पॉइजनिंग, स्टूपर, पिनपॉइंट प्यूपिल, शैलो ब्रीदिंग। तो देखो अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हमारे रूम में जैसे ही एंटर कर रहा है, हमें क्विक डायग्नोसिस करना है, बिल्कुल मतलब उसका सिम्टम देख के बताना है कि उसको ये चीज़ें हुई हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें कब पॉसिबल है, जब आपको पैथो अच्छे से आती होगी, जब आपको साइन एंड सिम्टम पता होंगे चीज़ों के, जब आपको POM होगी, जब आपको सर्जरी आएगी, जब आपको गायनिक पता होगी, ऑप्स पता होगी। देखो जब तक आप अपने अलाइड सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो तो आप होम्योपैथिक नहीं प्रैक्टिस कर सकते। आपका एम डायग्नोसिस करना नहीं है, बट आपका एम सिम्टम्स रिकॉर्ड करना है, जिसके थ्रू आप डिजीज़ पिक्चर बनाते हो और सही तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है एपोप्लेक्सी का, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट अचानक से बेहोश हो रहा है, पैरालिसिस हो रही है, ठीक है, फेशियल ड्रूपिंग हो रही है, या ओपियम पॉइजनिंग का केस है मान लो, तो आपके पास पेशेंट आता है, अब तो वो बोलने की स्टेट में नहीं है, बट आप क्या एग्जामिन करके तुरंत फट से उसको देख के बताओगे कि ये ओपियम पॉइजनिंग का केस है। क्यों? क्योंकि आपको उसके सिम्टम पता होंगे, आपको उसकी सारी पिकुलैरिटीज़ पता होगी, और इस तरह से क्या करोगे, आप उसको सही ट्रीटमेंट दे पाओगे। एक्यूट प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डायग्नोसिस, आपकी जो साइन एंड सिम्टम है, आप फट से पेशेंट को ऑब्जर्व करके ही उसको आप सही रेमेडी दे सकते हैं। इतनी पावरफुल है हमारी होम्योपैथिक रेमेडी। एक कोमाटोस पेशेंट को भी हम रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं और वो वापस उठ के खड़ा होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी क्या, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स और हमारा आइडेंटिफाई करना एक्यूट प्रॉब्लम्स को, ठीक है। Differentiating between drug effects and disease symptom. Aphorism 94: among the many things that interfere with the examination of the patient, the most important is the case taking or is the taking of medicine or having done something, no matter what it is, that has been capable of changing the symptoms.
Explanation: the physician must be aware of any recent drug usage by the patient as it may interfere the symptoms assessment. Drug can mask the true nature of the disease and complicate remedy selection. Here is the example: if the patient has recently taken quinine for malaria and presents the fever and chills, the physician must be cautious as the symptom may be altered by the drug and do not represent the original disease. तो देखो क्या होता है, मैंने आपको पिछले सारे वीडियो लेक्चर्स में या लगभग सभी में ही मैंने डिस्कस किया है कि जो डिजीज़ होती है ना, ठीक है, जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ का लेक्चर है या प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ है, वो वाले लेक्चर जाके देख लेना, लेक्चर 15 होगा वो। और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक जो हम ड्रगिंग कर रहे हैं या जो भी ड्रग्स ले रहे हैं या जो भी कोई और मेडिसिन इनटेक करके आ रहे हैं, कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा के आ रहा है, तो हमें ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगी। हमें क्या मिलेगा, उसकी जो मिमिकिंग है, मतलब वो जो ड्रग है उसकी हमको वो मिल सकती है सिम्टम्स, ना कि जो ट्रू नेचुरल डिजीज़ उसकी बॉडी में प्रेजेंट है वो तो कहीं छुप जाएगी किसके पीछे, हमने जो ड्रग दी हुई है उसके पीछे। तो जब भी पेशेंट आता है तो हमें हमेशा क्या लेनी होती है, उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री, ठीक है। तो पेशेंट आए, आपको पूछना है कि इसके पहले आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था, उससे आराम था या उससे तकलीफ बढ़ी थी, तो हमें क्या पता चलता है, उसका असली नेचर, उस डिज़ीज़ का असली नेचर हमें पता चल पाएगा, ठीक है। सिम्टम मास्किंग बाय ड्रगिंग, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अ पेशेंट हैज़ टेकन एंटीबायोटिक्स रिसेंटली एंड प्रेजेंट विद ongoing fatigue, the physician must wait for the effects of the drug to subside before a proper remedy can be chosen। तो देखो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, हमें उसका जो भी वो ड्रगिंग करके आया है उसके असर को ख़त्म होने तक का वेट करना है या उसके एंटीडोट करना है उसे, ठीक है, वो जो ड्रग है उसके इफ़ेक्ट को, और उसके बाद ही हम पूरी केस टेकिंग करेंगे और सही रेमेडी सेलेक्ट कर पाएंगे और उस पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। रिव्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ ड्रग यूजेज इन क्रॉनिक डिजीज़, तो देखो क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है, कभी कभी जो वो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, मैं अभी आपको जब एफोरिज्म पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनती है, डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनती है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो लेक्चर 15 है मैंने उसमें भी डिस्कस किया है कि कैसे एक जो डिज़ीज़ है वो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनती है, डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनती है, ठीक है, और कैसे जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ की कंडीशन में मान लो कोई बहुत 25 साल 20 साल 30 साल से वो नींद की दवा ले रहा है, तो हमें कभी भी उसकी जो असली डिजीज़ है ना, जो ट्रू क्रॉनिक डिजीज़ है वो नहीं पता चल पाएगी। हमें क्या मिलेगी, वो मास्किंग, वो जो ड्रग का असर है हमें वो मिलेगा। तो इस तरह से क्या है, हमें ट्रू नेचुरल डिजीज़ को ही जानना है। क्रॉनिक में हमें क्या लेनी है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेनी है, उस ड्रग का एंटीडोट करना है और उसके बाद ही उसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे कोई भी रेमेडी। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में भी वही दिया हुआ है, पेशेंट हु हैज़ बीन ट्रीटेड विद एंटीडिप्रेसेंट में शो ड्रग इंड्यूस सिम्टम्स, द फिजिशियन में नीड टू एंटीडोट दीज ड्रग्स बिफोर सेलेक्टिंग अ रेमेडी दैट करस्पॉन्ड्स टू द पेशेंट्स ओरिजिनल डिजीज़। तो देखो क्या करना है कि कभी भी कोई ऐसा केस है जिसमें बहुत ही क्रॉनिक ड्रगिंग का केस है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस रेमेडी या जो उस ड्रग का हमें एंटीडोट देना है, उसकी एंटीडोट होने के बाद जब उसके सारे उसके द्वारा बनाए गए जो सिम्टम है वो हट जाए, तब हमें असली के सिम्टम मिलेंगे, जो ट्रू नेचुरल डिजीज़ है उसकी बॉडी में क्रॉनिक केस है वो मिलेगा हमें, और उसके बाद ही हम उसको कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे उस पेशेंट को और हम उसे ठीक करेंगे। Here is the conclusion of this lecture. This lecture emphasizes that the examination of the patient in homeopathy is about careful observation, classification of symptoms, and recognizing the influence of external factors like medications. The homeopath must be capable of identifying particular symptoms, differentiate them from the common ones, and take a holistic view of the patient's condition to prescribe the most appropriate remedy. This requires not just knowledge of materia medica, but also an understanding of how the disease unfolds over the time and how external factors may interfere with the patient's natural disease progression। तो देखो इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि कैसे हमें क्या करना है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है, एक्यूट केस में सही डायग्नोसिस करना है, सही तरीके से पेशेंट को एक्यूट केस में उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, उसकी सारी की सारी सिम्टम पता होगी और उसके अकॉर्डिंग हम उसको रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम, कॉमन सिम्टम, पिक्युलर सिम्टम, जनरल सिम्टम, तो इस तरह से हम उसको क्लासीफाई करेंगे सिम्टम्स को, ठीक है, हमारी जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर उसके जो डिजीज़ कंडीशन है, अगर उसमें कोई भी इन्फ्लुएंस है किसी एक्सटर्नल मेडिकेशन का, कोई भी अलग दवाइयों का, तो उसको हम जानेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद उसका जो असर है या उसके ख़त्म होने तक, उस दवाइयों के असर ख़त्म होने तक या उसके बाद, या हम
जो है उसका एंटीडोट करते हुए, जैसे बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है, बहुत क्रॉनिक टाइम से, बहुत लंबे समय से वो क्या कर रहा है, किसी एक मेडिकेशन को ले रहा है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गई, नींद की दवाइयाँ हो गई, तो इस कंडीशन में क्या करना है, उसके एंटीडोट करेंगे हम उन दवाइयों के असर को, और उसके बाद ही हम उसके ट्रू नेचुरल जो सिम्टम है, जो डिजीज़ के सिम्टम है, उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।